Hello students, now you are SSC students. Today we are going to start our portion, that is the academic year, in this way. You all know that we are having total 6 subjects. In these 6 subjects there are 3 languages as per your choice. Second language, first language is English, second language is Hindi, and third language is Marathi. And for semi students, first language is Marathi, second language as per their choice either may be Hindi or Sanskrit, and the third will be English. And the rest of subjects all are same, that is science and technology. The next one is mathematics, and the last one is social science. Out of these you have to write 600 marks paper throughoutly. Each subject carry 100 marks. In all the 3 languages there will be 80 plus 20 bifurcation. In mathematics there will be also 80 plus 20, but in these 80 marks there also is a bifurcation of 2 papers, mathematics part 1 and mathematics part 2. As shown here, math subject is of 100 marks, paper 1 for 40 marks, paper 2 also will be for 40 marks, and the practicals now will be conducted for 20 marks. Now from this year you have to opt for the practicals. Students, the same video we are also sending to semi-English students, and therefore in some of the cases we can use Hindi words also. That means most probably we are using Hindi, and when you are coming back to the classes we will see here, we will also explain all the concepts in English. So let's start with mathematics. Today, as per our syllabus, we are going to start the chapter probability. That is the chapter number 5. But in all, there are 6 chapters in your mathematics part 1. In this, the first chapter is linear equations in 2 variables. You all are familiar. In 9th standard, you have studied all the concepts regarding this. Linear equations in 2 variables, simultaneous equations we can say. The second chapter is quadratic equations, and quadratic equation is also a very simple part. Here in linear equations you are having the degree of the variable is 1. In quadratic equation the degree of the variable is 2. Such type of equations you had already studied. For example, x plus y is equal to 9 and x minus y is equal to 2. Then these are the 2 variables, therefore these equations are called as linear equations. So ऐसे equations हम लोगों ने already 9th standard में study किए हैं, तो यही study हम लोगों को आगे जाके in elaborate form करना है. नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी इक्वेशन वाला पार्ट है, ये भी इक्वेशन वाला पार्ट था. यहाँ पे नाम अलग है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रा मींस 2. यहाँ पे क्वाड्रा का मतलब है 2. यहाँ पे जैसे वेरिएबल की डिग्री 1 थी, वैसे यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज ax² plus bx plus c is equal to 0. For example, x² plus 5x plus 6 is equal to 0. ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल ओनली 1 इज यूज्ड हियर एंड दैट इज वेरिएबल x. लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है. क्वाड्रा का मतलब 2. ये इक्वेशन मींस इक्वल टू साइन आता है, इसके लिए इसको इक्वेशन बोलते हैं. हाईएस्ट पावर 2 है, इसके लिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं. ये एक्चुअली इतना पार्ट हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है. x² plus 5x plus 6 ये एक्सप्रेशन होता है. अगर वो इक्वल टू 0 लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इक्वेशन. तो ये सब पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में कवर किया है. इसके ये एक्सप्रेशन के फैक्टर्स क्या आते हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किए हैं. सिर्फ इक्वल टू वाला पार्ट आता है तो क्या करना है, और उसके कुछ नेक्स्ट वाले पार्ट हम लोगों को ये स्टैंडर्ड में स्टडी करना है. द नेक्स्ट चैप्टर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये थोड़ा आपके लिए नया है. एक्चुअली वैसे तो नया नहीं है, आप चेस खेलते हो. अब ये इसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं इसमें हम लोगों को थोड़े खेल खेलने हैं. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला पार्ट कैसा है, आप कुछ ग्राउंड में खड़े रहते हो, तो फर्स्ट रो में समझो कि 5 स्टूडेंट्स हैं, नेक्स्ट रो में 10 स्टूडेंट्स हैं, उसके नेक्स्ट रो में अगर 15 स्टूडेंट्स रहेंगे, तो यहाँ पे कुछ तो एक सीरीज मेंटेन होती है, कुछ तो उसमें कुछ लिंकिंग रहता है.
ये लिंकिंग क्या है, या समझो कि आपके पेरेंट्स ने कभी लोन वगैरह लिया होगा, तो वो लोन की अमाउंट जब पे करते हो तो कुछ तो सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट्स में वो पे करते हो। ऐसे सब एग्जांपल्स हम लोगों को ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में स्टडी करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ तो सीरीज आपको दी जाएगी, पहले है 1, नेक्स्ट है 4, उसका नेक्स्ट होगा, अब इसके बाद वाले जो नंबर्स है वो आपको बताओ। ये ऑलरेडी आपने 4th 5th स्टैंडर्ड में स्कॉलरशिप एग्जाम्स के लिए स्टडी किया होगा। यहाँ पे ये इसमें कुछ तो रिलेशन है, क्या है रिलेशन, वो रिलेशन पहले हम लोगों को स्टडी करना है और उससे रिलेटेड या रिगार्डिंग कुछ अदर कंसेप्ट्स भी हम लोगों को स्टडी करना है। इतना सिंपल ये चैप्टर है, थोड़ा नया है लेकिन इट्स वेरी सिंपल। The next chapter is financial planning and you all are familiar with this chapter. Already in 9th standard you had studied various concepts regarding this chapter. GST क्या होता है, अब तो इसके बाद थोड़ा नेक्स्ट आएगा, शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होता है, बैंक पासबुक कैसे लिखा जाता है, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये सब हम लोगों को ये फाइनेंशियल प्लानिंग में आएंगे। We are going to start this chapter, already I had announced, that is the probability. इसमें तो बहुत सारे खेल खेलने हैं, ये चैप्टर के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। And the last one, statistics, here also you are familiar with this chapter. स्टैटिस्टिक्स में क्या किया था हम लोगों ने लास्ट ईयर, तो हम लोगों ने ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया था। बहुत कुछ डेटा आपको प्रोवाइड करेंगे और ये डेटा के संदर्भ में हम लोगों को कुछ उसका बाइफर्गेशन करना होता है, कभी कभी मीन फाइंड करना होता है, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, ये सब कंसेप्ट्स ऑलरेडी हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किए हैं। उसका थोड़ा आगे जाके हायर स्टडीज करना है, मीन फाइंड करने के। आप लोगों ने तो लास्ट ईयर में बहुत सिंपल वाले मीन्स फाइंड किए हैं, अगर हमारा डेटा सिंपल रहेगा तो हम लोग मीन कैसे फाइंड करेंगे, लेकिन ये साल हम लोगों को मीन फाइंड करने के वैरायटी ऑफ तरीके, छोटा डेटा होगा तो कौन सी मेथड अप्लाई करनी, जब डेटा हमारा बहुत ही बड़ा होता है तो क्या करना है, ये सब हम लोगों को अभी ये साल स्टडी करना है। दैट मीन्स दैट चैप्टर ऑल्सो इज वेरी सिंपल चैप्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर थ्रू आउट एकेडमिक पोर्शन। सिर्फ हम लोगों को 6 ही चैप्टर स्टडी करने हैं और ये 6 चैप्टर पे बेस्ड हम लोगों को 40 मार्क्स का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का पेपर लिखना है। द टाइम ड्यूरेशन फॉर योर एग्जाम इज ऑफ 2 आवर्स। जो पेपर पैटर्न है चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी मैं बताऊंगी तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं एक फोटो कॉपी आपको ग्रुप में भेज दूंगी। चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड द पेपर पैटर्न, ऑलरेडी पेपर पैटर्न जो 9th स्टैंडर्ड का था वैसे ही है, यू आर ऑल फैमिलियर विद दिस। पहला क्वेश्चन 1 मार्क के आएंगे, पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके बाद बी क्वेश्चन रहेगा, उसमें 4 क्वेश्चंस 1 मार्क के जनरल पूछे जाएंगे, उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड पूछ रहेंगे 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के। एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा एप्लीकेशन ओरिएंटेड आएगा, तो वो क्वेश्चन के लिए हम लोगों को बहुत सारी तैयारियां करनी है। बाकी तो ये सब हम लोग ले लेंगे। हर एक चैप्टर में कुछ तो फॉर्मूले हम लोगों को दिए जाएंगे। दीज फॉर्मूला आर अवर कीवर्ड्स। हम लोगों को वो जनरल क्या होता है, कभी हम लोगों को कुछ खोलना होता है या कुछ फिक्स करना होता है, हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, पाने लेते हैं। ये सब जो है दीज आर आर की इंस्ट्रूमेंट्स। ये सब की यहाँ पे हम लोग ये की इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। हमारे की इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, हमारे फॉर्मूले। सम रीड करो, रीड करने के बाद हम लोगों को कुछ तो आइडियाज डेवलप हो जाएंगे और ये आइडियाज डेवलप जब होते जाएंगे वैसे ही हम लोगों को आगे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है उसका आइडिया आएगा और वो फॉर्मूला यूज करके हम लोग सम सॉल्व करेंगे। इट्स वेरी वेरी सिंपल। मैथ्स के लिए डरो मत, मैथ्स इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट। यू कैन क्रैक 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स इन मैथमेटिक्स पार्ट 1 as well as same condition of maths 2. I am going to teach you variety of chapters and those are very important chapters. Now, as per the previous announcement, हम लोगों ने already आपको बताया था कि probability हम लोग start कर रहे हैं, probability की थोड़ी बहुत study करो। तो ये जो probability है क्या होता है, आप लोगों ने ये probability बचपन से खेली है। आपके दादा दादी, नाना नानी आपके साथ बैठते थे, आप जब छोटे थे वो टाइम पे वो कुछ एक कॉइन लेते थे। कॉइन कैसे होता है, इट इज हैविंग 2 sides, 2 faces we can say। एक साइड पे हेड होता है, दूसरी साइड पे टेल होता है। इसका मतलब क्या, एक साइड उसके छापे की होती है, दूसरी कांटे की होती है। आप क्या करते थे, आप या आपके दादा दादी नाना नानी वो कॉइन टॉस करते थे।
टॉस करने के बाद पहले आपको पूछा जाता था, अरे बोल क्या आने वाला है, कॉइन टॉस किया, देखा, आपने अगर हेड बोला है, छापा बोला, तो वहां पे काटा ही पड़ता था। कभी कभी ऐसा होता था कि आप काटा बोलते थे, लेकिन जब कॉइन टॉस करने के बाद हम लोग देखते थे वहां पे वो छापा आता था। तो दो ही रिजल्ट्स हम लोगों को पता थे, ये दो रिजल्ट्स में से ही हम लोगों को कुछ तो एज एन आवर आंसर मिलता था। दो रिजल्ट थे, लेकिन आने वाला रिजल्ट क्या है वो हम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था। आने वाला एक तो हेड होगा, नहीं तो टेल होगा, ये दो छोड़ के कुछ अलग नहीं होगा, लेकिन दो में से एग्जैक्टली क्या है हमें बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था। ये पहला खेल हम लोगों ने बचपन में खेला है। आज सेम खेल हम लोगों को ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर में खेलना है। तो मैथ्स हम लोग खेलते खेलते स्टडी करेंगे। नाउ दीज आर समर वेकेशंस, डेली खेलो। सेकेंड खेल आपने थोड़ा बड़ा होते होते आपने खेला होगा, एंड दैट इज थ्रोइंग ऑफ अ डाई। आपने लूडोस खेला होगा, यू आर फैमिलियर विद लूडो, सांप सीढ़ी इन मराठी वी कैन से। क्या करते थे, एक छोटा क्यूब डाई आता है, वो डाई इज हैविंग 6 फेसेस, 1 डॉट 2 डॉट 3, हर एक फेस पे कुछ तो नंबर ऑफ डॉट्स होते थे। 6 फेसेस पे 6 डॉट्स होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐसा ऐसा करके डालते थे, जो आता था वो रिजल्ट हम लोग नोट डाउन करते थे। पहले हम लोगों ने डाला 1 आया समझो, सेकेंड बार डाला समझो कि 5 आया, थर्ड टाइम डाला समझो कि 4 आया, ऐसे ही कुछ आते जाता था। 6 फेसेस है तो वो डाई 6 फेसेस पे से कौन सा तो एक ही फेस दे देगा, 7वीं फेस तो वहां पे नहीं आएगी। तो हम लोगों को रिजल्ट ऑलरेडी मालूम है, लेकिन कौन सा आने वाला है इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। ये सेकेंड भी खेल हम लोगों ने ऑलरेडी बचपन में खेला है। थर्ड खेल थोड़ा और आगे आगे जाते बड़े होते खेलते हैं। यू आर ऑल फैमिलियर विद प्लेइंग कार्ड्स। नाउ दिस प्लेइंग कार्ड वाला भी गेम हम लोगों को अभी खेलना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके लिए सबके साथ हम लोगों को ये प्रोबेबिलिटी खेलनी है। सिंपल है, इसके लिए आपको बताया था। लेट्स स्टार्ट विद प्रोबेबिलिटी। हेलो स्टूडेंट्स, today we are going to start with this 5th chapter, that is probability. Now actually you all are familiar with probability. क्या होता है, बचपन में हम लोगों ने बहुत सारे खेल खेले। आज एक नया खेल खेलते हैं। आपका गेट टुगेदर है, वो गेट टुगेदर में हम लोग क्या करते हैं, समझो कि यू आर 10 फ्रेंड्स, तो 10 चीट्स बनाएंगे। वो 10 चीट पे एक एक एक्टिविटी हम लोग कुछ तो लिखेंगे। किसी को डांस करना है, एक चीट पे लिखा, दूसरी चीट पे एक गाना गाना है, तीसरी चीट पे कुछ तो एक्टिविटी करके दिखाना है। ऐसे किसी को ड्रामा करने के लिए बोले, ऐसे बहुत सारे 10 स्टूडेंट्स हैं तो 10 एक्टिविटी हम लोग वो चीट्स पे लेंगे और वो चीट सब पैक करके फोल्ड करके हम लोग एक बॉक्स में रखेंगे और एक स्टूडेंट को रैंडमली बुलाएंगे कि उठ बबो, और बताएंगे यू टेक द चीट। और किसी को डांस करना है, लेकिन वो बच्चा थोड़ा उसको डांस नहीं आता है, तो वो थोड़ा सा डरा हुआ होगा कि नहीं मैं पहले जाऊं तो शायद डांस करने का जो चीट है उसके चांसेस ज्यादा होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। बाद में ऐसे एक स्टूडेंट को हम लोग उठाएंगे, बुलाएंगे। लास्ट वाला जो स्टूडेंट बोलेगा कि मुझे तो सब आता था, लेकिन मुझे क्यों लास्ट बताया सब लोगों ने, मुझे तो सब आता है, मैं तो ये सब कर सकता था, इजीली कर सकता था, तो मेरे लिए वो बहुत आसान था, लेकिन मेरा नंबर लास्ट आया तो मेरे चांसेस बहुत कम हुए डांस करने के। अगर वो चीट किसी और के पास जाती, आई एम अ वेरी बिग डांसर, वी कैन से रॉक डांसर, रॉक स्टार्स वी कैन से, तो ऐसा वाला अगर रहेगा तो उसको लगेगा कि अरे मेरे चांसेस कम हुए। और पहले वाले को हम लोग जब बताते हैं तो उसको लगेगा कि मेरे चांसेस ज्यादा है, मेरी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन मुझे तो ये आता नहीं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब 10 बच्चों के अंदर ही हम लोगों ने ये सब डिस्ट्रीब्यूट किया था। ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उनके वो एकाध पर्टिकुलर एक्ट करने के जो चांसेस है, वो चांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक की पॉसिबिलिटी एक फिक्स्ड रहेगी, लेकिन उनको लगता होगा कि नहीं मेरे चांसेस ज्यादा है। तो ये 10 एक्टिविटीज के लिए हर एक का चांस सेम रहेगा। जो कोई उठेगा उसके हाथ में जो चीट आएगी वही उनको परफॉर्म करना होगा, लेकिन उनके मन में डर होगा।
तो इट्स अ टाइप ऑफ सच टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी वी कैन से। एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ कि जो हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जब हम लोग बचपन में खेलते थे तो हमारे दादा दादी नाना नानी एक कॉइन उठाते थे, वो बोलते थे, टॉस करते थे और हम लोग खेलते थे। हम लोगों को भी पता था एक तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। जब हम लोग कुछ गेम खेलने स्पोर्ट एक्टिविटीज में जाते हैं तो पहला हम लोगों का व्हाटएवर डिसाइड होता है, समझो कि हमारी फाइनल मैच चल रही है वर्ल्ड कप की, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, बोथ आर प्लेइंग दिस मैच, दोनों टीम एक दूसरे के सामने खड़े हैं और कोई आते हैं और टॉस करते हैं। टॉस करने के बाद जिसका जो विन होगा, जो टॉस विन करेगा, वो बैटिंग या फील्डिंग व्हाटएवर जो उनको लगता है वो लेते हैं। तो ये पहले से हम लोग स्टडी करते आए, देखते आए हैं, समझते आए हैं, लेकिन इसका ये प्रोबेबिलिटी के साथ क्या संबंध है? अब मुझे बताओ कि आपको हेड और टेल ये दोनों ही कॉइन इज हैविंग ओनली टू फेसेस, हेड और टेल छोड़ के और कुछ आएगा क्या कॉइन टॉस करने के बाद? नहीं आएगा। अब डाई थ्रो करने के बाद हम लोगों ने देखे कि 1 to 6 ही नंबर्स ही आएंगे, 7th वाला नंबर या 8th वाला नंबर उसमें नहीं आएगा, या 0 वाला भी नंबर वहां पे नहीं रहेगा। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं ये हम लोगों को पता है, लेकिन हम लोगों को ये डिटेल मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली क्या आने वाला है। अगर मैं कॉइन टॉस करूं तो वो छाप ही आने वाला है, हेड ही आने वाला है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो ये जो वर्ड्स मैंने ये सब डिस्क्रिप्शन में यूज किए, कौन कौन से? पॉसिबिलिटी, गेटिंग चांस, श्योरिटी, ये जो वर्ड्स है ये सब वर्ड्स हमारे प्रोबेबिलिटी में आते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं ये दोज आर कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है क्या? कॉइन लो, टॉस करो, हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। डाई लो, थ्रो करो, हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। या हम लोग अभी प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं, क्या होता है जब व्हाटएवर आई एम नॉट फैमिलियर विद ऑल दिस प्लेइंग कार्ड्स, बट एक सुना है कि हुकुम निकालते हैं। तो हुकुम निकालते वक्त हम लोग क्या करते हैं, कोई तो एक प्लेइंग कार्ड का कैट आगे आपके सामने रखता है और उसमें से एक कोई तो रैंडमली पत्ता आप निकालते हैं और वो छुपा के रखते हैं। वो जो रैंडमली निकालने वाला जो पत्ता है दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो यू ऑल आर फैमिलियर विद इट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली होता है क्या? एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, एक होता है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और दूसरा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये चैप्टर में हम लोग फैमिलियर रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ होंगे। डिटरमिनिस्टिक तो भी मैं आपको समझने के लिए बताती हूँ। एक जनरल एग्जांपल, आपने लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में वगैरह कुछ किया होगा कि एसिड और बेस जब एक साथ हम लोग कंबाइन करते हैं तो उसका रिजल्ट हम लोगों को मालूम होता है, एग्जैक्टली वहां पे सॉल्ट तैयार होने वाला है और वाटर तैयार होने वाला है। तो एसिड और बेस दोनों कंबाइन करने के बाद क्या आने वाला है ये रिजल्ट हम लोगों को इन एडवांस पता है कि इसका रिजल्ट आने वाला है, कुछ तो सॉल्ट तैयार होगा और वाटर तैयार होगा। वो सॉल्ट कौन सा है डिपेंड्स ऑन दैट एसिड एंड बेस कंटेंट्स। ये हो गया डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। और एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताती हूँ, मुझे सैफरॉन कलर तैयार करना है, केशरिया रंग तैयार करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेड कलर का थोड़ा प्रपोर्शन और व्हाइट कलर का थोड़ा प्रपोर्शन दोनों एक साथ कंबाइन करेंगे। कुछ प्रपोर्शन एग्जैक्ट अगर तैयार होगा तो हम लोगों को वहां पे सैफरॉन कलर की शेड मिलेगी, केसरिया रंग मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि मुझे ब्लैक कलर बनाना था इसके लिए मैं यहाँ पे रेड कलर लिया, यहाँ का व्हाइट कलर दोनों साथ में लिया और ब्लैक कलर आया, ऐसे कभी भी नहीं होगा। या इसका मतलब हम लोगों को मालूम है कि हम लोग जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, हम लोग साइंस लैबोरेटरी में जाके जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो डिटरमिनिस्टिक होते हैं। वहां पे हम लोगों को उनके रिजल्ट्स इन एडवांस पता होते हैं, एग्जैक्टली पता होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोगों को रिजल्ट क्या आने वाला वो पता है तो भी एग्जैक्टली हम लोग वो रिजल्ट के बारे में कुछ बता नहीं सकते। ऐसे वाले जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं दोज आर कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, the experiments those results we are known in advance but we cannot predict the exactness about them। आने वाले रिजल्ट्स दो में से कोई तो एक आने वाला है वो हम लोगों को पता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या आने वाला है कुछ भी पता नहीं है। तो such type of experiments are called as random experiment and this is the definition of it। अब कौन सा भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो कुछ आता है
कॉइन टॉस करने के बाद क्या आता है? हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। यहाँ पे ये हेड और टेल, दीज आर कॉल्ड एज आउटकम्स। समझ में आता है? एक्सपेरिमेंट कौन सा परफॉर्म किया? टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। एक कॉइन लिया, टॉस किया, देखा क्या आया, कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा। आने के बाद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हम लोगों को क्या मिल रहा है? या आइदर हेड मिल रहा है या टेल मिल रहा है, ये दोनों में से ही कुछ मिल रहा है। दीज टू आर कॉल्ड एज आउटकम्स। तो एक एग्जांपल लेके हम लोग इसको क्लियर करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। यहाँ पे ये जो कॉइन है, ये कॉइन, कीप इन माइंड दिस कॉइन शुड बी अनबायस्ड कॉइन। व्हाट इज कॉल्ड इट? अनबायस्ड कॉइन। What is meant by unbiased coin? बहुत सारे टाइम हमारे जो डे टू डे लाइफ में हम लोग जो कॉइन्स यूज करते हैं, those are unbiased. That means these are having two faces. एक जगह पे कुछ छाप जैसा कुछ पिक्चर रहेगा, दूसरी जगह पे कुछ टेल जैसा पिक्चर रहेगा। लेकिन आपके मम्मी पापा को पूछो, शोले फिल्म एक आपने देखी थी, ये दोस्ती हम नहीं भूलेंगे करके एक गाना है, वहां पे अमिताभ बच्चन एंड धर्मेंद्र जी दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो जब भी कॉइन टॉस करते थे, सेम पिक्चर वहां पे आता था। सच टाइप ऑफ कॉइन्स की जो दोनों भी जब लास्ट में देखा उन्होंने, तो उनको पता चला कि वो दोनों साइड सेम ही पिक्चर था। ऐसे वाले कुछ कॉइन्स होते हैं, वो कैसीनो यहाँ पे नहीं, वो जो अलग अलग कुछ खेलते हैं जुगाड़ एंड ऑल, तो सच टाइप में वैसे वाले कॉइन्स रहते हैं। तो ये जो कॉइन्स है, तो सच टाइप ऑफ कॉइन्स आर कॉल्ड एज बायस्ड कॉइन्स। तो बायस्ड का मतलब क्या? कि दोनों साइड पे एक ही कुछ पिक्चर रहेगा। सच टाइप आर नॉट यूज्ड हियर फॉर अवर दीज रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। रैंडम एक्सपेरिमेंट सिर्फ हमारे अनबायस्ड कॉइन के ही साथ होगा। तो जब हम लोग ये कॉइन टॉस करते हैं, एज अ रिजल्ट हम लोगों को जो कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है? एक तो हेड मिलेगा, नहीं तो टेल मिलेगा। हेड हम लोग H से डिनोट करेंगे, टेल हम लोग T से डिनोट करेंगे। आइदर वी आर गेटिंग हेड और वी आर गेटिंग टेल। तो दीज आर द आउटकम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट। गॉट इट? अब इसका नेक्स्ट, तो व्हाट इज मीन बाय आउटकम? आउटकम मींस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो भी कुछ आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज आउटकम। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारी सैंपल स्पेस एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सेट थियरी स्टडी की थी। तो सेट थियरी में क्या होता है? जनरली सेट्स आर रिटन इन टर्म्स ऑफ कर्ली ब्रैकेट बाय प्लेसिंग कॉमास एंड ऑल। रोस्टर मेथड, लिस्टिंग मेथड, सब मेथड्स हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किए थे। 9th स्टैंडर्ड का वो मेथड हम लोगों को अभी यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखते वक्त काम आएगा। तो व्हाट इज सैंपल स्पेस? Sample space is the set of all the outcomes of a random experiment. Listen once again. What is mean by sample space? Sample space is the set. Sample space क्या है? It is a set of all possible outcomes of random experiment. रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी आउटकम्स आ रहे हैं, अब देखो पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद उसके आउटकम्स आएंगे। ये आउटकम्स हम लोगों को जब पता होंगे तो ही हम लोग ये सैंपल स्पेस लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, इतने ही पॉसिबल है, क्या है? आउटकम्स है। ये आउटकम्स किसके हैं? ये रैंडम एक्सपेरिमेंट के। गॉट इट? जनरली द सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय लेटर S। किससे डिनोट करते हैं? वो कैपिटल S से डिनोट करते हैं, और इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय ओमेगा। दिस इज कॉल्ड एज ओमेगा एंड दिस इज अ ग्रीक लेटर। तो व्हाट इज दिस सैंपल स्पेस? अगर मुझे ये ही एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस लिखनी है तो हम लोग लिखेंगे therefore S is equal to head and tail. This is the sample
sample space of this experiment. Let's now study with another example. एक और एग्जाम्पल लेते हैं और हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था थ्रोइंग ऑफ अ डाई. बाकी सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थ्रोइंग ऑफ अ डाई एक्सपेरिमेंट. तो ये पहला एग्जाम्पल हम लोग अभी यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेंगे. दूसरा एग्जाम्पल है थ्रोइंग डाई. यहां पे भी ये डाई जो है वो डाई फेयर डाई होना चाहिए. कॉइन होते वक्त इट इज कॉल्ड एज अनबायस्ड कॉइन. डाई जब होता है इट इज कॉल्ड एज फेयर डाई. फेयर डाई का मतलब सेम है कि वहां पे कभी कभी ऐसा होता है कि वो जुगाड़ वगैरह लोग खेलते हैं कैसिनोज एंड ऑल, तो उसमें ऐसे टाइप वाले रहते हैं. हमारे कंट्री में वो थोड़ा कम चलता है. अमेरिका एंड ऑल में लास वेगास एंड ऑल इज वेरी फेमस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ. तो ये डाई हम लोग जब थ्रो करते हैं तो डाई थ्रो करने के बाद एज एन आउटकम हम लोगों को क्या मिलेगा. आप डाई थ्रो करके देखो क्या क्या आ रहा है. पहली बार 1 आएगा, दूसरी बार 4 आएगा, तीसरी बार समझो कि 3 आएगा, लास्ट में 6 आएगा. ऐसे सब कुछ. दैट मींस वी आर गेटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 6. डाई थ्रो किया मींस कुछ तो किया, एक्टिविटी परफॉर्म की. जो एक्टिविटी परफॉर्म की वो एक्टिविटी है थ्रोइंग ऑफ अ डाई. ये करने के बाद हम लोगों को क्या मिल रहा है. तो मिल रहा है 1, नहीं तो 2, नहीं तो 3. दैट मींस वी आर गेटिंग आइदर 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6. 1 to 6 में से कौन से तो एक ही फेस मिल रही है. अगर हम लोग ये एज एन आउटकम कंसीडर करेंगे तो सैंपल स्पेस इसकी क्या होगी दूसरे एग्जांपल की. S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. तो हम लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ पर. दिस इज द सैंपल स्पेस. तो हम लोगों ने आज 2 एग्जांपल्स डिस्कस किए. टॉसिंग ऑफ अ कॉइन एंड थ्रोइंग अ डाई. ये परफॉर्म्ड एक्टिविटीज है, therefore random experiments. These are outcomes and the last are these sample spaces. अगर हम लोग ये सैंपल स्पेस में जितने भी नंबर ऑफ आउटकम्स है वो काउंट करेंगे तो कितने हैं यहाँ पे 2 है. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं therefore n of s is equal to 2. Number of outcomes in the sample space is denoted by n of s or it is also denoted by n of omega. Here also we can write here therefore n of s is equal to 6. Yeah, we can in other words we can say n of omega is equal to 6. So this is about these 2 experiments. Next experiments we will discuss in next lecture. Thank you.